परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, ये फैले हुए उनके पंख बोलते हैं। वो लोग अक्सर रहते हैं खामोश, ज़माने में जिनके हुनर बोलते हैं। हुनर एक ऐसी चीज़ है जो किसी भी चीज़ का मोहताज नहीं होती, और आज उसी बात को बहुत सारे लोग साकार कर रहे हैं। जब आप में टैलेंट होता है तो देश दुनिया की कोई सीमा आपके लिए मायने नहीं रखती है। यही साबित करता है वडोदरा का सोहम, एक स्पेशल, एक दिव्यांग बच्चा, लेकिन आज इंटरनेशनल स्तर पर खेलने जा रहा है। मैं बात कर रही हूँ, मेरे साथ है सोहम राजपूत की। સોમ ધર્મેશભાઈ રાજપૂત. સોહમ રાજપૂત. સોહમ, ક્યાં જવાનું છે રમવા માટે? શાના માટે સિલેક્શન થયું છે? હું એથ્લેટિક્સ છું. 400 મીટર રિલે, 800 મીટર રેસ. હું બોલિંગમાં સિલેક્ટ થયો છું. જર્મની જવાનો છું. કેટલી પ્રેક્ટિસ કરી રહ્યા છે જર્મની, બર્લિન જવાની? સવારે અને સાંજે. સવારે માજપુર સ્ટેડિયમ, સાંજે અકોટા સ્ટેડિયમ. સવારે કેટલા વાગે ઉઠી જવું પડે પ્રેક્ટિસ કરવા માટે? 5:30 ઉઠું જવું પડે. પછી હું વોર્મઅપ એક્સરસાઇઝ. કોણ કરાવે છે આ બધું? લક્ષ્મીસિંહ રાઠોડ સર અને વિકાસ અગ્રવાલ સર. લક્ષ્મણ સર અને વિકાસ સર મહેનત કરાવે છે. કેવી રીતે મહેનત કરાવે? દોડવું પડશે, એવું બધું પ્રેક્ટિસ કરાવે? હા. એવું ગમે બધું? હા. અને ખાવાનું શું હોય? ખાવાનું ધ્યાન રાખવું પડે, કારણ કે આપણે ઇન્ટરનેશનલ સ્તર પર રમવા જવાનું છે. હા. પ્રોટીન દૂધ લેવું પડે, પછી મગ ખાવા પડે. પ્રોટીન દૂધ બધું લેવું પડે. કોણ આવું બધું કોણ તૈયાર કરી આપે? મોમ. ઘરમાં કોણ કોણ છે? મમ્મી, પપ્પા, ભાઈ, દાદી, ફોઈ. બધા જ છે. હા. અને કોણ સૌથી વધારે ગમે એમાંથી? મમ્મી. મમ્મી. શું નામ છે મમ્મીનું? દર્શનાબેન રાજપૂત. મમ્મી શું શું હેલ્પ કરે? કંઈ પણ જોઈતું હોય તો પછી મમ્મીને કહેવાનું કે મમ્મી આ જોઈએ છે મને. કેવી રીતે મમ્મી હેલ્પ કરે? મમ્મીને કેટલો પ્રેમ કરો છો? બહુ બધો. હા. અને મમ્મી તમને કેટલો પ્રેમ કરે? બહુ બધો પ્રેમ કરે. શું લાગે, કોનો સપોર્ટ છે આટલો બધો કે આટલું આગળ વધવા માટે હવે આગળ જઈ રહ્યા છો? ઇન્ટરનેશનલ લેવલ પર રમવાનું છે. ડર લાગે છે કે મજા આવે છે? આમ એક્સાઇટમેન્ટ છે? મજા. હા. એક્સાઇટેડ? હા. ક્યારે જવાનું છે બર્લિન? 11 તારીખે જવાનું છે. 11 તારીખે D20 ફ્લાઇટ છે. ફ્લાઇટ એટલે વિમાનમાં જવાનું? હા, વિમાનમાં જવાનું છે. પહેલી વાર? પહેલી વાર. એની પણ એક્સાઇટમેન્ટ હશે? હા. હા. કેવું લાગશે જ્યારે વિમાનમાં જઈશું ત્યારે? સારું લાગશે. સારું લાગશે. હા. બર્લિનમાં જઈને શું અચીવ કરવાનો છે? ત્યાં શું કરવું છે? શું વિચાર્યું છે કે મારે શું લઈને આવવાનું છે? ગોલ્ડ મેડલ લઈને આવવાનું છે. ગોલ્ડ મેડલ લઈને? हाँ. गोल्ड मेडल, यही सपना है सोहम का। आप सोचिए, एक बच्चा जो स्पेशल चाइल्ड होता है, नॉर्मल बच्चों की अपब्रिंगिंग में भी हमें काफ़ी दिक्कतें आती है, और जब बच्चे स्पेशल हो तो उनके कोचेस, उनकी फैमिली, उनके पेरेंट्स, सबको एक ख़ास मुहिम शुरू करनी पड़ती है, एक ख़ास जंग लड़नी पड़ती है उन बच्चों को आगे ले जाने के लिए। और ये जंग लड़ी है पूरे राजपूत परिवार ने, ना सिर्फ फैमिली ने, उनके कोच, उनके टीचर्स, ये सारे लोगों ने मिलकर आज सोहम को उस जगह पहुंचा दिया है कि वो इंटरनेशनल स्तर पर स्पेशल ओलंपिक्स समर गेम्स में हिस्सा लेने जा रहा है। एथलेटिक्स की जो रेसेस होती है उसमें वडोदरा के सोहम राजपूत का चयन हुआ है, और सोहम राजपूत के पीछे कड़ी मेहनत कर रही है पूरी फैमिली और साथ ही उनके कोच। सोहम राजपूत, एक खास बच्चा
जिसे अब इंटरनेशनल लेवल पर खेलने जाना है। जब एक बच्चा इंटरनेशनल लेवल पर पहुंचता है, उसकी मेहनत तो होती ही है, लेकिन परिवार की मेहनत बहुत ज़्यादा होती है। एक नॉर्मल बच्चा होता है, उसकी अपब्रिंगिंग में भी काफ़ी दिक्कतें पेरेंट्स को आती ही है, और जब पता चले कि बच्चा स्पेशल है तो क्या कहानी होती है, ये हम राजपूत फैमिली से जानेंगे। और मेरे साथ मॉम, सोहम ने कहा था उसे मॉम बहुत पसंद है, और मॉम सोहम की हमारे साथ है दर्शना राजपूत। दर्शना जी, क्या बताएंगे सोहम के बारे में? सबसे पहले बचपन से शुरू कीजिए, कहाँ से शुरू हुई ये पूरी કહાની? સોહમ પહેલાં નાનો હતો ત્યારથી જ એને રમતગમતમાં ખૂબ જ રસ હતો. તે રમવાની સાથે સાથે ટીવી જોવાનું, સાથે સાથે બધા ફેસ્ટિવલને સેલિબ્રેટ કરવાનું એનો પહેલેથી ખૂબ જ રસ હતો. એના માટે એને તહેવારો આવે પહેલાં તો એનું એન્જોયમેન્ટ ચાલુ થઈ જાય. દરેક તહેવાર એ ફૂલ એન્જોયમેન્ટથી સેલિબ્રેટ કરતો હતો. સોહમ ફર્સ્ટ ચાઇલ્ડ છે, ક્યારે તમને ખબર પડી કે સોહમ કંઈક વિશેષ છે, કંઈક અલગ છે? જ્યારે ફર્સ્ટ સ્ટાન્ડર્ડમાં આવ્યો ત્યારે એને ટ્યુશનમાં મૂકવામાં આવ્યો હતો. ત્યારે ટ્યુશનના ટીચરે કેટલી વખત કહ્યું કે આને ગમે તેટલી વખત રિપીટ કરાવે તો પણ એને યાદ નથી રહેતું, તો તમે એને સ્પેશિયલ કાઉન્સેલિંગ કરાવી જુઓ કે એને શું પ્રોબ્લેમ છે કે જેથી રિપીટ કરાવે છતાં પણ એને યાદ નથી રહેતું. તો અમે એને કાઉન્સેલિંગ કરાવ્યું તો અમને ખબર પડી કે એને સ્લો લર્નર છે, અને સાથે સાથે પછી એને એ રીતે કાઉન્સેલિંગ ચાલુ કર્યું. કેટલું મુશ્કેલ હતું એ જે ફેઝ હોય આખો એ સમજવાનું કે આપણું બાળક છે કંઈક ખાસ છે, કંઈક અલગ છે, કંઈક વિશેષ છે? કેવી રીતે તમે એ ડાયજેસ્ટ કર્યું અને પછી અપબ્રિંગિંગ ત્યાંથી અલગ રીતે શરૂ કરી? એકચ્યુઅલી થોડું અઘરું તો લાગ્યું, પણ એક્સેપ્ટ કરવા સિવાય તો કોઈ ઉપાય જ ના હોય આપણી પાસે, કારણ કે આપણું જ બાળક છે, એને સ્વીકારવાનું તો છે જ. એટલે એની જે કેપેસિટી છે, એને જે નબળાઈ છે, એને તાકાત બનાવીને એને આગળ વધારવા માટે અમે પાછળથી પુશઅપ કરતા રહ્યા કે કઈ રીતે એને તું યાદ રાખી શકે છે વસ્તુને. પણ અને એ ભણવામાં નથી એનું માઇન્ડ ચાલતું, તો એને કઈ રીતે વાળી શકીએ અમે, એને કેવી રીતે મોટિવેટ કરી શકીએ કે આગળ એ એનું પોતાની રીતે ઇન્ડિપેન્ડન્ટ થઈને પોતાની રીતે આખું જીવન ગુજારી શકે. પછી તમને ક્યારે ખબર પડી કે આપણે સ્પોર્ટ્સ તરફ લઈ જઈએ સોહમને? કારણ કે સ્લો લર્નર બાળક હોય ત્યારે આપણે એને ભણાવવા પાછળ જ કોન્સન્ટ્રેટ કરતા હોય કે થોડુંક સારું ભણી લે, પછી તમને ક્યારે લાગ્યું કે ના, કંઈક બીજે હવે એને વાળવાની જરૂર છે? ના, એકચ્યુઅલી અમે પહેલેથી પ્રેશરાઇઝ તો એને ભણવા બાબતે બિલકુલ નથી કર્યો. એ ખાલી એટલું માર્કેટમાં નીકળે કે કાં તો બહાર નીકળે તો એટલું કોઈ એને એવી રીતે પાછળ ના પાડી શકે કે ભાઈ એને આવડતું નથી, એને વાંચતા લખતા નથી આવડતું. તો એના માટે અમે લોકોએ પ્રયત્ન કર્યો કે તું થોડુંક તો બેઝિક તો કરી લે કે જેથી વાંચી લખી શકે. એ બસ એના માટે પ્રયત્ન કર્યા છે. બાકી એવું નથી કે તું કોઈ ડિગ્રી લે કે એના માટે કોઈ દિવસ કોશિશ નથી કર્યો મેં. અને હા, એને પહેલેથી રમતગમતમાં તો પહેલેથી રસ છે જ, તો અમે એનો રસ અને સાથે લક્ષ્મણસિંહ રાઠોડ એમના અપ્રોચથી અમને ખબર પડી કે ભાઈ હા, એની અંદર આ ટેલેન્ટ છે કે એ કરી શકે છે રનિંગમાં. તો ધીમે ધીમે એમને પણ ગાઈડ કર્યું, અમે પણ એને પાછળ ટાઈમ આપ્યો, અને ત્યાર પછી આ પદ પર એ પહોંચી ગયો છે. હવે બાળકોને પ્રેક્ટિસ કરવા માટે લાવવાના, એમને રમાડવાના, એમનું જે ડાયટ છે એ બધું જ ધ્યાન રાખવાનું, એ કેવી રીતે મેનેજ કરો છો? એ સવારમાં મારે થોડુંક મહેનત કરવી પડે છે કે એના માટે વહેલું ઉઠીને એના માટે જે કંઈ જરૂરી છે તે બધું રેડી, એ ઉઠે એની સાથે સાથે મારે એને આટલા ટાઈમમાં આટલી વસ્તુ કરીને આપી દેવાની. એ જે દોડીને આવે પછી એના પછી એને કઈ વસ્તુ જરૂર છે, પ્રોટીન લિક્વિડ જરૂર છે કે પછી પ્રોટીન સ્પ્રાઉટની જરૂર છે, એ પ્રમાણે એને જરૂર હોય એ પ્રમાણેના મિનરલ્સ આપ્યા છે. અને સાથે સાથે એને જ્યારે લાગે ત્યારે કહેતી રહું છું કે પાણીનું વધારે પ્રમાણ કર, પાણી વધારે પી. એ એના ડાયટને એને પૂરું ધ્યાન આપવામાં આવ્યું છે. કેટલું પ્રાઉડ ફીલ કરે એક માં જ્યારે બાળક ઇન્ટરનેશનલ લેવલ પર રમવા જતું હોય? પ્રાઉડ તો એક જાતનું આપણું ડ્રીમ જ પૂરું કરી રહ્યો છે છોકરો, કે ભાઈ હા, આપણે આ લેવલ પર આવ્યા પછી એક મુકામ છે કે આપણે એને જોઈએ, અને એ પણ ટીવીમાં અને આખા વર્લ્ડમાં એ ફર્સ્ટ આવે એવી આશા સાથે આપણે જોતા હોય. એટલે ઘણો આનંદ થઈ રહ્યો છે કે બસ गोल्ड मेडल लेना आवे. हर एक बात पूरी हो रही है गोल्ड मेडल पर, सपना यही है, गोल यही है. गोल पूरा होता है कि नहीं वो आगे की बात है, लेकिन
जो जर्नी है वो बहुत ज़्यादा इंस्पायरिंग है, क्योंकि जब सोहम जैसे बच्चों को ट्रेन करना होता है, हर एक व्यक्ति को अपने अपने लेवल पर मेहनत करनी होती है। एक पिता जो होते हैं वो हमेशा बच्चों को बहुत अच्छी परवरिश की और उन्हें बहुत अच्छी ट्रेनिंग, उनका जो भी इंटरेस्ट है उससे कैरी करने में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और धर्मेश भाई ने क्या रोल प्ले किया है वो भी हम जानेंगे। धर्मेश भाई, बेटा आपका इंटरनेशनल लेवल पर खेलने जा रहा है, क्या महसूस कर रहे हैं? मैडम प्राउड तो फील हो रहा है अभी, क्योंकि आज ऐसा जो स्पेशल चाइल्ड है, और स्पेशल चाइल्ड जितना हो सके उतना आगे बढ़ेगा तो हमको भी अच्छा लग रहा है। और बेटर है कि वो हमारे लिए तो ठीक है, मगर देश के लिए खेलेगा वो बहुत ज़्यादा प्राउड फील करते हैं अपने। और क्या चैलेंजेस आई? अब सोहम 17-18 साल का है करीबन, इतने 17-18 साल में उसे बड़ा करने में, उसे समझाने में, उसे वो सारा मेन स्ट्रीम में लाने में कितनी प्रॉब्लम्स आई, क्या चुनौतियों का सामना करना पड़ा? एक्चुअल मैडम जैसे नॉर्मल बच्चों को होता है, उसको ये समझाते हैं तो वो समझता है। उसको जो अब ये जो स्पेशल चाइल्ड है तो उसको समझाने में थोड़ा दिक्कत लगता है, मगर वो समझता है तो उसको समझा के फिर बाद में उसको आगे ले जाते हैं। थोड़ा उसमें ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है उसको, कि आगे जाके वो समझ पाए पूरा। बर्लिन जा रहा है, आगे क्या गोल है, क्या करवाना चाहते हैं आप सोहम से, कि सोहम को और आगे कहाँ देखते हैं? हम और आगे देश के लिए कुछ और भी आगे कोई गेम्स में जाए और कुछ बढ़े, वो अप्रोच करना चाहते हैं और उसका एक मुकाम तय करना चाहते हैं। वो मुकाम पे वो पहुँचे, वो खुद अपना कुछ कर पाए, वो बेटर फील कर पाए और बेटर कुछ आगे काम कर पाए। इसके लिए कुछ न कुछ हम मेहनत करते रहेंगे मैम। सोहम के बाद आपका एक दूसरा बेटा भी है, देवराज और सोहम, क्या फ़र्क है दोनों बच्चों में, और दोनों की अपब्रिंगिंग में कितना फ़र्क महसूस किया आपने, कि किस तरह से अलग अलग बच्चों की परवरिश करनी पड़ती है? एक्चुअली मैम देखने जाए तो हम कोशिश तो यही करते हैं कि दोनों एक ही लेवल पे हम काम करते हैं। ऐसा नहीं है कि उसको अलग और ये, हम दोनों को एक ही लाइन पे ट्रैक पे ले जाते हैं तो वो ज़्यादा बेटर रहता है। कैसी है दोनों की बॉन्डिंग, कैसी है? दोनों की बॉन्डिंग बहुत सही है, मगर हर घर में ये होता ही है कभी। दोनों भाइयों में बच्चों में लड़ाई तो होती है, वो तो रहती है छोटे और यस, ये तो खैर मज़ा है परिवार का, बच्चों का जी। और दोनों की बॉन्डिंग बहुत अच्छी है। एक भाई जो दोनों अपने लिए जो अलग अलग जो होते हैं, मान लो कि इसको स्कूल से कुछ मिलता है स्पेशल तो वो अपने भाई के लिए लेके आता है, ये स्कूल से कुछ मिलता है वो अपने भाई के लिए लेके आता है। यानी कि बॉन्डिंग बहुत बढ़िया है मैम। मैंने देखा है जो भी स्पेशल बच्चे होते हैं बहुत प्यार करते हैं। सोहम भी क्या बहुत प्यार करता है फैमिली वालों से, अटैच्ड है कि या कम अटैच्ड है, या अटैच होते हैं ये बच्चे या अटैच नहीं होते हैं? सोहम किस कैटेगरी में है? सोहम का अटैचमेंट फैमिली से ज़्यादा रहता है, और स्पेशली इसकी मॉम है, इसके ग्रैंड मदर है, उसके साथ में ज़्यादा है मैम। देवराज भाई इंटरनेशनल लेवल पर બર્લિન રમવા જાય છે, કંઈ કહેવું છે એના માટે? બેસ્ટ ઓફ લક કેવું છે ભાઈને? મારો ભાઈ જીતીને આવે મેં એવું ઈચ્છું છું. કઈ સ્કૂલમાં ભણો છો તમે? રિલાયન્સ ફાઉન્ડેશન રિલાયન્સ ફાઉન્ડેશન. કયા સ્ટાન્ડર્ડમાં? 3rd. ભાઈ સાથે શું લડાઈ થાય છે? થોડી થોડી થાય. સોહમ મારે છે? હા થોડું થોડું અને આવે. હવે ભાઈ જવાનો છે બહાર ઇન્ટરનેશનલ, તો તમને એવું થાય છે કે યાર મારે પણ હવે જવું જ પડશે? હા मैं ફૂટબોલમાં જવાનું છું. आप देखिए एक पूरा परिवार, हंसता खेलता सा परिवार, और शायद सालों पहले उन्हें थोड़ी सी चुनौतियों का सामना करना पड़ा होगा, लेकिन आज ये परिवार अपने आप को इतना प्राउड महसूस कर रहा है। आप देख पा रहे हैं सभी के चेहरे पर, उनके माता पिता ने कहा कि बहुत प्राउड होता है जब बच्चा इंटरनेशनल लेवल पर खेलने जाए, और क्यों ना हो, मेहनत आज बोल रही है सोहम की। सोहम के पीछे जो माता पिता ने मेहनत की है वो बोल रही है, और एक छोटे से बच्चे देवराज को भी इसी से प्रेरणा मिल रही है कि मुझे भी कहीं ना कहीं अपने देश का, अपने माता पिता का नाम रोशन करना है।
साथ मिलकर किया हुआ एक एफर्ट आज रंग लाया है और न सिर्फ परिवार की मेहनत, कोच की मेहनत भी इसमें बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि बच्चे की कैपेबिलिटीज़ को जानकर उसे, क्योंकि स्पेशल बच्चा है, उसके मूड के हिसाब से उसकी शरीर की जो कमियां हैं उससे कैसे हम ताकत में बदले, उस मोटो के साथ आगे बढ़ना होता है। और ये बखूबी किया है आरके स्पोर्ट्स एकेडमी के लक्ष्मण सर ने। लक्ष्मण सर भी मेरे साथ हैं। सर, सोहम इंटरनेशनल लेवल पर जा रहा है, एज अ कोच क्या महसूस कर रहे हैं? बहुत बड़ी खुशी हो रही है मैम, क्योंकि एक कोच के लिए इससे बड़ी खुशी क्या हो कि उसका स्टूडेंट एक इंटरनेशनल लेवल पे जाए, वो हमारा बड़ा कामयाबी का एक पद होता है कि हम लोग एक ऊंचाई जो हमको हासिल करनी थी वो कर चुके हैं, हमारा ड्रीम पूरा हुआ। सर, ये जो स्पेशल ओलंपिक समर गेम्स हो रहे हैं उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी दीजिए। कौन कौन सी कैटेगरीज होती है, कहाँ कहाँ से लोग आते हैं? ये एक स्पेशल ओलंपिक जो है वो एक संस्था है जो मतलब रमत गमत के लिए, मतलब जो खेल कूद के लिए होती है, जिसमें क्या ऐसे बच्चे जो हैं जिनके लिए शारीरिक विकास हो, इनकी क्षमताओं को बाहर लेके आए। और इस जो समर गेम और एक विंटर गेम दो होते हैं जो हर 4 साल में एक बार आते हैं, जिसमें मतलब डिस्ट्रिक्ट और स्टेट और नेशनल, इसमें से बच्चों का परफॉर्मेंस देखा जाता है और उसमें से सिलेक्ट हो जाते हैं। और जैसे यहाँ से गुजरात से जो सिलेक्ट हुआ तो वो सेम प्रोसेस रहता है। फिर उसके बाद जो है ऑल ओवर इंडिया के सिलेक्शन होते हैं। उस सिलेक्शन के बाद में उनमें कैपेबिलिटी देखी जाती है कि भाई किस गेम के अंदर इसको लिया जाए आगे, उसके हिसाब से सिलेक्शन होते हैं। और फिर वो इनके डिफरेंट गेम होते हैं। जैसे ये एथलेटिक्स में जा रहा है अभी, तो एथलेटिक्स में अलग अलग चीज़ें होती है। जैसे अभी इसको जैसे 4x400 रिले और 800, तो अभी ये जो है कंपटीशन करने जा रहा है 800 में। अभी हमारा मतलब ड्रीम ये है कि कम से कम ये 800 में गोल्ड मेडल लेके आए इंडिया लेवल में, तो इंडिया का नाम करे, तो वो हमारे लिए बड़ी बात है। और इसमें सभी गेम होते हैं। जैसे समर गेम के अंदर बास्केटबॉल है, वॉलीबॉल है, फुटबॉल है, और यूनिफाइड स्पोर्ट्स के साथ भी ये है जिसमें इन बच्चों को साथ में किया जाता है, वो भी अभी शुरू किया है। तो वो भी जा रहे हैं, जिसमें नॉर्मल बच्चा और स्पेशल बच्चा दोनों साथ में करते हैं। सर, सोहम तो स्पेशल है ही और आप स्पेशल एजुकेटर है, आप ऐसे ही बच्चों को ट्रेन करते हैं। क्या चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि नॉर्मल बच्चों से ये बच्चे थोड़े से अलग ज़रूर होते हैं? चुनौती तो स्टार्टिंग में तो होती है। जैसे क्या होता है कि इनको एक स्पेशल एजुकेशन के हिसाब से इनको समझने का वो एक हमें पता चला है, ऑब्जर्वेशन करते हैं इनके किस मोमेंट पे ये मतलब हाइपर होते हैं, किस मोमेंट पे ये स्लो होते हैं, कब ये रिस्पांस देंगे कब नहीं देंगे, उसके हिसाब से हम अपने आप को उनके हिसाब से हमको कार्य करना पड़ता है, क्योंकि हम अपने हिसाब से नहीं कर सकते। जैसे एक नॉर्मल कोच है, जैसे नॉर्मल बच्चों के साथ करते हैं, तो उसमें कैसा है कि हम लोग कोई भी कमांड दे सकते हैं, उनको गुस्सा भी कर सकते हैं, पर यहाँ हम कुछ भी नहीं कर सकते। यहाँ इनको सिर्फ प्यार से मनाया जाता है, या फिर इनको कुछ प्रॉब्लम दिया जाता है कि भाई तुम ऐसा ये करोगे तो तुम्हें ये मिलने वाला है, वहाँ होगा ऐसा होगा। तो फिर इनके, और दूसरी चीज़ क्या है, नॉर्मल बच्चों में, मैं पहले नॉर्मल बच्चों में भी स्पोर्ट टीचर रह चुका हूँ, पर मैंने इन बच्चों में और नॉर्मल में इतना फ़र्क देखा है कि उनको कहने के बावजूद भी वो जो मन में आएगा वही करेंगे। पर ये क्या है कि टोटली डिवोटेड हो जाते हैं। इन्होंने एक बार सोच लिया कि मुझे, अगर मेरे कोच ने कहा है कि मुझे ये करना है, मीन्स करना है, फिर ये देखते नहीं, अपनी पूरी एनर्जी लगा देते हैं, और 100% जो एनर्जी लगाता है उसका रिजल्ट आता ही है। सोहम के साथ क्या एक्सपीरियंस रहा? कितने सालों से आप ट्रेन कर रहे हैं और आज अब उस मुकाम पर सोहम को आपने पहुंचा दिया है? सोहम को मैं पिछले 5-6 साल से मतलब ट्रेनिंग दे रहा हूँ। जैसे खेल महाकुंभ हमारे होते हैं तो उसमें ये दौड़ते रहते थे, तो वहाँ हमारा ऑब्जर्वेशन चलता रहता है कि कौन बच्चा किस फील्ड में है, क्या है, तो हम वहीं से अपना मतलब एक बच्चे को बाहर निकालते हैं, और फिर वो ओलंपिक के लिए हम लोग तैयारी करते हैं कि इस बच्चे को 4 साल कम से कम अगर एक गेम में किया जाए तो ये रिजल्ट ला सकता है। तो वहाँ पे इसको जैसे रनिंग में हमने रखा था स्टार्टिंग में, तो इसका काफ़ी रनिंग जैसे थी, तो जैसे मैं एथलेटिक्स साई खेला हुआ हूँ, तो मुझे ऐसा लगा कि इसके अंदर अगर थोड़ा सा कुछ मेहनत की जाए तो ये रिजल्ट ला सकता है। तो पिछले 4 साल से फिर मैंने इसका एक टारगेट ले लिया कि इसको कैसे भी करके इस बार समर गेम के अंदर इंटरनेशनल बड़ौदा से ले जाना है, क्योंकि बड़ौदा के अंदर इंटरनेशनल अभी तक काफ़ी टाइम हो गया कि कोई भी इंटरनेशनल एथलेटिक्स में अभी तक नहीं गया है। बाकी गेम में गए हैं कुछ बच्चे हैं, तो वो एक टारगेट था। फिर जब ग्रोथ एंड डेवलपमेंट मैनेजर का पोस्ट मिला तो फिर एक जवाबदारी मिल गई कि भाई अब तो कुछ करके दिखाना है, और बड़ौदा का भी नाम हो, गुजरात का नाम हो। तो फिर इसके ऊपर प्रैक्टिस शुरू किया हमने। अकोटा स्टेडियम पे हमारा जो है एकेडमी चलता है, वहाँ पे हमने कच्चे में दौड़ाना शुरू किया। उसके बाद हमने परमिशन ली कि भाई अब इसको ट्रैक दिखाना ज़रूरी है, हमें भी टाइमिंग पता चले। तो फिर हम लोग जब इस ट्रैक पे आए तो आज अभी जो है फ़िलहाल है वो 3 मिनट में ये 800 मीटर का रनिंग करता है अभी भी। और भी हमारा ये है कि कम से कम ये 2 या 2.5 में आए। क्या गोल दिया है सोहम को? आखिरी सवाल। गोल यही है कि इसको गोल्ड लेके आए, वही हम लोग कोशिश करते रहते हैं, समझाते रहते हैं, और ये भी बोलता है कि मैं गोल्ड लेके आऊँगा, तो वो खुशी होती है मैडम।
सोहम को यही सपना दिखाया गया है, यही गोल दिया गया है कि गोल्ड मेडल से कम कुछ भी नहीं लाना है। सोहम के साथ बहुत सारी बेस्ट विशेष है। तैयारियां मायने रखती हैं। गोल्ड मेडल ज़रूर आएगा जब इस तरह की मेहनत हो, जब इस तरह का जज्बा हो। और उनके साथ जा रहे हैं विकास अग्रवाल सर, जो बर्लिन जा रहे हैं सोहम को लेकर एज अ कोच। SVIT के स्पोर्ट्स डायरेक्टर है और सोहम के पीछे वो भी मेहनत करते जा रहे हैं। विकास सर और VNM बहुत सालों पुराना रिश्ता है और क्योंकि VNM का रिश्ता हमेशा स्पोर्ट्स से रहा है। AD व्यास सर को कौन नहीं जानता और AD व्यास सर का जो स्पोर्ट्स का सिलसिला था वो विकास सर ने हमेशा हमारे साथ मिलकर बरकरार रखा है। विकास सर आज एक बच्चे को लेकर इंटरनेशनल लेवल पर जा रहे हैं, उनके लिए ये खुशी क्या मायने रखती है, ये मैं ज़रूर पूछना चाहूँगी। सर, एक बच्चे को लेकर इंटरनेशनल लेवल पर, और वो भी आपने हमेशा स्पेशल बच्चों के लिए काम करना आपको ज़्यादा पसंद आया है। AD व्यास सर के साथ मिलकर भी मैंने देखा है कि आपने हमेशा दिव्यांग बच्चों को, स्पेशल बच्चों को आगे बढ़ाने की कोशिश की है और आज एक बच्चे को लेकर आप इंटरनेशनल लेवल जा रहे हैं। हाँ, AD व्यास मेरे गुरु थे। इस फील्ड में स्पेशल बच्चों के साथ काम करने के लिए वही मुझे प्रोत्साहन दिया था, वही मुझे इस फील्ड में लेके आए थे। उससे पहले मैं ज़्यादा कुछ जानता नहीं था इन बच्चों के बारे में, और उनका सपना था कि हमारे बड़ौदा से बच्चे इंटरनेशनल खेलें और कुछ नाम करें बड़ौदा का। स्पेशल बच्चों के लिए हमेशा वो तत्पर रहते थे काम करने के लिए, और उनके साथ रह के वही आदत मेरे अंदर भी आ गई है। आज भी बड़ौदा में कहीं भी किसी स्पेशल बच्चे के लिए काम होता है तो हम लोग खुद दौड़ के जाते हैं वहाँ काम करने के लिए। और आज मुझे ऐसा लग रहा है कि व्यास सर जहाँ भी हैं वहाँ से वो देख रहे होंगे कि आज बड़ौदा का एक स्पेशल बच्चा सोहम राजपूत एथलेटिक्स के लिए सिलेक्ट हुआ है और इंटरनेशनल खेलने जर्मनी जा रहा है। तो हमारी सबकी शुभकामनाएं सोहम के साथ हैं और हमको लगता है कि व्यास सर का सपना भी आज पूरा हुआ होगा। सर, किस तरह की मेहनत की गई है, क्योंकि नेशनल लेवल पर खेलना अलग चीज़ होती है और इंटरनेशनल लेवल पर खेलना अलग चीज़ है। आप लोगों ने किस तरह की प्रिपरेशन की है और सोहम को किस तरह की ट्रेनिंग दी है? स्पेशली देखा जाए तो बेसिकली इसमें सबसे ज़्यादा जो भाग रहा है वो खेल महाकुंभ का रहा है। खेल महाकुंभ के जरिए ये बच्चे आगे आए हैं, पेरेंट्स आगे आए हैं, बच्चों को खेलने के लिए भेजने लगे हैं। पहले ऐसा माहौल नहीं था। पहले बच्चों को बंदिशों में रखा जाता था कि नहीं, ये हमारा स्पेशल बच्चा है, ये बाहर नहीं जा सकता, ये नहीं कर सकता। लेकिन अब पेरेंट्स में भी अवेयरनेस आई है, वो लोग भी बच्चों को बाहर लेके आ रहे हैं। खेल महाकुंभ के जरिए जो रिजल्ट आया है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, स्टेट लेवल पे, और स्पेशल ओलंपिक ऐसा फेयर ऑर्गेनाइजेशन है कि जहाँ मेहनत करने वाले को हमेशा फल मिलता है, कामयाबी मिलती है उसको। तो वो खेल महाकुंभ के जरिए जो रिज़ल्ट आया है स्टेट लेवल का, उसमें से इनको पसंद करके नेशनल लेवल के लिए भेजा जाता है। वहाँ पे भी इनका बिल्कुल फेयर सिलेक्शन होता है और उसके बाद इनका इंटरनेशनल का चांस मिलता है। और हकीकत में तो यहाँ देखा जाए तो सोहम के पीछे बहुत मेहनत की है पिछले 4-5 साल से। ये कोरोना की वजह से थोड़ा हमारा डाउनफॉल चल रहा था, उस समय में उतनी प्रैक्टिस नहीं हो पाई। तो उसके बाद भी जैसे ही कोरोना हटा और फिर से हमने ग्राउंड पे आए हैं हम लोग, तो उसके बाद बड़ौदा के जो हमारे कोच थे लक्ष्मण सर, उन्होंने भी इसके साथ काफ़ी मेहनत की है। और इसकी स्पेशल प्रैक्टिस हम लोग जनरली ऐसे रेगुलर प्रैक्टिस करा रहे थे। अभी हमको मांझलपुर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स भी मिला है, यहाँ पे ट्रैक पे ही अच्छे से प्रैक्टिस कर पा रहा है। इसको और ज़्यादा नॉलेज आई है यहाँ ट्रैक पे प्रैक्टिस करके कि मेरे को कौन सी लाइन में दौड़ना है, क्या करना है। और हकीकत में देखा जाए तो 400 मीटर परफेक्ट यहाँ ये दौड़ पा रहा है। नहीं तो हम इसको अलग अलग ग्राउंडों पे दौड़ा रहे थे तो वहाँ उसका 400 मीटर परफेक्ट नहीं हो पा रहा था। यहाँ ये 400 मीटर रिले की भी प्रैक्टिस कर रहा है और 800 मीटर की भी प्रैक्टिस कर रहा है। और स्पेशल डाइट के लिए उनके पेरेंट्स से भी बात हुई है, पेरेंट्स भी अच्छी डाइट दे रहे हैं। और जो छोटी छोटी टेक्निकल इसकी रनिंग में प्रॉब्लम है वो हम डे टू डे देखते जा रहे हैं। और कोचिज़ की भी हम लोग यहाँ जो एथलेटिक्स के कोच हैं बड़ौदा के, बड़ौदा एसोसिएशंस वाले हैं एथलेटिक्स के, हम उनकी भी मदद ले रहे हैं और वो भी हमको पूरी तरह से हेल्प कर रहे हैं कि आज एक बच्चा सिलेक्ट हुआ है तो हम बिल्कुल भी मतलब उसमें लूप फॉल नहीं छोड़ना चाह रहे हैं कि वो स्पेशल बच्चा है, उसको अच्छे से प्रैक्टिस कराएं और वो नेशनल में, इंटरनेशनल में मेडल मार के आए। सर, एक आखिरी सवाल ज़रूर करना चाहूँगी। जो लोग दिव्यांग है, स्पेशल है, कहीं ना कहीं अपने आप को कमज़ोर समझते हैं या कम समझते हैं, घर में बैठते हैं, कुछ उनकी जो कैपेबिलिटीज़ होती है वो बाहर नहीं आ पाती या फिर पेरेंट्स सही सपोर्ट नहीं करते हैं, क्या कहना चाहेंगे उन स्पेशल लोगों के लिए? हकीकत में देखा जाए तो इन बच्चों को हमसे ज़्यादा नॉलेज है। ये और रेगुलर बच्चे के साथ हम लोग जो मेहनत करते हैं उससे कम मेहनत में ये बच्चे हमको रिज़ल्ट दे रहे हैं। हाँ, ठीक है कि हमको इनके साथ एक स्पेशल ट्रीटमेंट के साथ, स्पेशल प्रैक्टिस के साथ स्पेशल कोचिंग देनी पड़ती है इनको, थोड़ी मेहनत हमारी होती है लेकिन रिज़ल्ट हमारा ज़्यादा आता है।
और मैं पेरेंट्स से यही कहूँगा कि आप अगर आपके घर में भगवान ने स्पेशल बच्चा दिया है तो आप उसको बंदिशों में मत रखो, उसको बाहर आने दो। उसके अंदर बहुत कैपेबिलिटी है, वो बाहर आके उसको वो कैपेबिलिटी दिखाने का मौका दो। अगर आज एक बच्चा हमारा जा रहा है तो हम चाहेंगे कि अगले स्पेशल ओलंपिक में, अगला जो इंटरनेशनल ओलंपिक होगा स्पेशल बच्चों का, उसमें हम कोशिश करेंगे कि हमारे 4 से 5 बच्चे खेल के आएँ। बड़ा गोल लेकर चल रहे हैं और मुझे पता है व्यास सर जहाँ से देख रहे होंगे ज़रूर खुश हो रहे होंगे, क्योंकि उनका हमेशा से यही उनकी कोशिश रही है, उनकी ये हमेशा एफर्ट्स रहे हैं कि ये बच्चे हैं नेशनल पर जाएं, इंटरनेशनल पर जाए। और आज वडोदरा का जब एक बच्चा इंटरनेशनल लेवल पर जर्मनी एथलेटिक्स में स्पेशल ओलंपिक्स में खेलने जा रहा है, तब वडोदरा शहर के लिए हमेशा ये गौरव की बात है। वडोदरा शहर ने बहुत सारे स्पोर्ट्समैन दिए हैं और सोहम राजपूत नाम का एक इंटरनेशनल स्टार भी अब वडोदरा शहर देने जा रहा है। वीएनएम के ज़रिए ये पूरी बातचीत आप तक पहुंच रही थी। वीएनएम का यूट्यूब चैनल है, आपने अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि यहाँ ऐसी ही बातें आप तक पहुँचती है जो सीधे सीधे आपसे जुड़ी है, सीधे सीधे आप लोगों हमारे जैसे लोगों के साथ जुड़ी हुई है। फेसबुक पर देख रहे हैं, शेयर ज़रूर कीजिए, क्योंकि ये सारी बातें बहुत इंस्पायरिंग है। सो हमको देखकर भी मुझे ऐसा फील हो रहा है, गूज बम्स आ रहे हैं कि अगर ये कर सकता है तो हर एक बच्चा कर ही सकता है। बस उसमें वो कैपेबिलिटीज़ जगाने की हमें ज़रूरत है, एक बिलीव हमें उसमें जगाने की ज़रूरत है। डेली हंट, वोडाफोन टीवी, जियो टीवी और अब तो जियो टीवी फाइबर 498 नंबर के चैनल पर वीएनएम टीवी को आप देख सकते हैं। देखते रहिए, हमेशा जुड़े रहिए वीएनएम के साथ। नमस्कार।